I am going to begin this session. Dear participants, our resource person of this session is Dr. Aradhana Shukla ji, former head Department of Psychology, Kumaon University, Almora, and former Dean Arts Faculty, Kumaon University, Almora. Earlier, it was known as SSJ Campus, Kumaon University, Almora. Now, it is Shobhan Singh Jinnah University, Almora, independent university. Madam had 40 years of teaching experience in UG and PG classes, and she has published more than 100 research papers in journals. She has wrote 15 books in her career and published 15 behavioral assessment tools in psychology and related area. She has supervised up to now 52 PhD scholars in PhD program. Madam has received many awards, such as Distinguished Leadership Award by American Biographical Institute, America, and Distinguished Psychologist by Prasad Institute of Behavioral Sciences, Calcutta. And I would like to also say that presently she is ICSSR Professor of Emeritus Professor, and is still active in academia. As you see, Madam is very encouraging and motivating for us, for our department. And above all, I would like to say that she is our esteemed alumni of this department. So with these words, I would like to invite Professor Aradhana Shukla ma'am to start her video. Thank you. Thank you very much, Professor Dhananjay ji. I am highly thankful to you that you have called me or received me to come here and share my views on test construction, item construction, and item response theory. So at first, I will start from item construction, and then we will turn our attention towards item response theory. Prior to show my slides, at first, I will talk about item and item constructions, and then we will move on the slide. As the internet problem is highly prominent as compared to our academia and anybody and everything else. So I have joined by two devices. One is my mobile and one is others, so that I will try my best not to be interrupted and run the session in a smooth way. So at first, what is item? Item क्या है? पद विश्लेषण. हम जब टेस्ट बनाते हैं तो टेस्ट में सबसे पहले उसमें हम पदों को देखते हैं. मैं सुनाई पढ़ रही हूं ना आप लोगों को? मैं सुनाई पढ़ रही हूं? Yes, yes. जी जी. तो सबसे पहले बात आती है. So in order to be smooth in the session, I have given you the numbers so that I could modify my internet connection as it was highly disturbed on yesterday. So सबसे पहले बात आती है कि आइटम किसे कहते हैं. जब हम किसी टेस्ट का निर्माण करते हैं तो जो हम देखते हैं उसमें 25 लिखे रहते हैं, 50 लिखे रहते हैं. दे आर टर्म्ड एज आइटम. उनको हम आइटम कहते हैं या हम उनको पद कहते हैं. तो आइटम क्या है? आइटम refers to single task or question that usually cannot be broken down into any smaller unit. एक पद, एक प्रश्न, एक स्टेटमेंट, एक कथ्य, जो भी होगा हम उसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे. एक वाक्य में होगा तो हम उस वाक्य को तोड़ नहीं पाएंगे. इस तरीके से हम इसको कहते हैं कि ये आइटम है, और इन्हीं आइटम्स को मिला करके हम एक टेस्ट बनाते हैं. एक आइटम जो आप देखते हैं, आप टेस्ट करते हैं तो आपको लगता है कि ये बड़ा बढ़िया 2 पन्ने में छाप दिया, 3 पन्ने में छाप दिया, लेकिन ये जो 2 पन्ना 3 पन्ना बनता है उसके लिए हमको बहुत से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है. वी हैव टू क्रॉस सो मेनी स्टेप्स. उसके बाद हमारा एक टेस्ट तैयार होता है. तो हमने आपको जो आइटम बताया उसके बाद मैंने ये कहा कि
व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइटम, आइटम कैसा होना चाहिए, क्या उसकी विशेषता है, किस प्रकार का आइटम होगा जिसको हम किसी भी टेस्ट में एडमिट कर पाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि आप जो भी टेस्ट बनाते हैं उसमें जो आइटम रखते हैं वह एक विशेष वर्ग के लिए, आयु वर्ग के लिए, कभी लिंग वर्ग के लिए, कभी शैक्षिक स्तर वर्ग के लिए, कभी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वर्ग के लिए। इट मीन्स दैट देयर आर लॉट ऑफ स्ट्राटा इन द यूनिवर्स, और जिस ग्रुप को, जिस स्ट्राटा को आपने चाहा है कि हम उसके ऊपर इस टेस्ट को एडमिनिस्टर करेंगे, तो उसके नॉर्मल बुद्धि को लेते हुए, नॉर्मल बुद्धि, नॉर्मल मतलब एवरेज जो उसका प्रेजेंटेशन है, लाइक आप कहते हैं कि 68.26 इन द एनपीसी, उसको मद्देनजर रखते हुए ही आप आइटम को लेंगे। आइटम शुड बी वेलकम्ड बाय एट लीस्ट एवरेज सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। सो ये ना बहुत कठिन हो ना बहुत सरल हो। जब कॉमन मैन एंट्रेंस में आएगा तो सही बात है कि जो उच्चतर बुद्धि वाले होंगे, उच्चतर स्टेटा वाले होंगे, जो +-1 के उधर होंगे, उनके लिए ये क्या होगा, ये आसान होगा। और जो -1 में है उनके लिए भी थोड़ा रेडिबल होगा, और बाकी जो सबसे टॉप वाले हैं वो तो बिल्कुल गिफ्टेड है या नेगेटिवली हैं, तो हम उनके बारे में नहीं कर सकते। इट मीन्स ना जो हमारा आइटम होगा वह ना बहुत कठिन होगा ना बहुत सरल होगा। दूसरी बात है नॉट ऑफ डबल मीनिंग, द्व्यर्थी, डबल अर्थ वाला, दोहरी मीनिंग वाला, ऐसा नहीं। जनरली लोग जो बात करते हैं कि मेरे कहने का मतलब ये है, तो ये चीज जो है आइटम में नहीं आनी चाहिए। आइटम का वही मतलब है जो उसमें लिखा हुआ है, कोई भी उसका दूसरा अर्थ ना निकाले। इतनी संभावना जो है वह टेस्ट निर्माणकर्ता को ध्यान में रखना चाहिए कि वह इतना वहां पर न डाले। अगला डिस्क्रिमिनेशन पावर। आपके पास जो एक आइटम बना रहे हैं, आप उसको 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 5 पॉइंट, 7 पॉइंट तक एटलीस्ट आप उसमें रखते हैं। 7 पॉइंट तक तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, उसके ऊपर जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो पाता है। सो मेनी टाइम्स आई हैव सीन। सबसे आदर्श जो होता है वह 5 पॉइंट होता है, क्योंकि जो 2 पॉइंट होता है वह बीच की कोई संभावना नहीं छोड़ता, जबकि मध्य की ही संभावना सबसे अधिक होती है। जो 3 पॉइंट होता है उसमें अधिकतर लोग बीच का करते हैं, वहां पर लोग क्या करते हैं, पूर्वानुमानित प्रेजुडिस बिहेवियर करते हैं। उनका कोई बायस, प्रेजुडिस भी नहीं कहूंगी, बायस कहूंगी, वो बायस एक आधारित व्यवहार करते हैं। उसके आधार पर एक बहुत बड़ी समस्या होती है। सबसे बड़ी समस्या उसमें ये होती है कि हम रियल रिस्पॉन्स जो होता है, हम उसमें रियल रिस्पॉन्स को नहीं निकाल पाते हैं। तो अगर हम 5 का रखेंगे तो बहुत अधिक, अधिक, सामान्य, कम और बहुत कम। प्रत्येक जो ये प्रत्येक पद हैं पंचपदीय, जो प्रत्येक पद हैं, प्रत्येक पद का अपना डिस्क्रिमिनेशन पावर है और वह दूसरे से अलग है। इस बात को आप, इस तथ्य को आप जब ध्यान में रखेंगे तब आप टेस्ट का कंस्ट्रक्शन सही तरीके से कर पाएंगे। और नो गेस, कोई घपलेबाजी वाला काम नहीं, ये ना होगा तो ये होगा, ये ना होगा तो ये नहीं होगा। जो उत्तर होगा वो एक होगा, जो उत्तर होगा वो एक होगा, और उसी एक उत्तर के आधार पर, उसी एक उत्तर के आधार पर ही कार्य होगा। उसका एक सर्वमान्य उत्तर हो जाना चाहिए। एक आइटम दूसरे आइटम से भिन्न होगा, इंडिपेंडेंट इन मीनिंग, नॉट बेस्ड ऑन द अदर आइटम्स। एक आइटम दूसरे आइटम से भिन्न होगा, उसका अर्थ अलग होगा और उसका स्वत्व जो है वह इंडिपेंडेंस अलग होगी। तो इस चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन सारी फ्लावरिश लैंग्वेज, सारी ऑर्नामेंटल लैंग्वेज, जितनी आभूषण जड़ित हो वह इसमें लगा दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। जो कॉमन एंड प्रैक्टिस में जो भाषा चलती है, जो सामान्य जनजीवन के बोलचाल में जो भाषा चलती है, उसी भाषा में आप टेस्ट का निर्माण करेंगे, आइटम्स का निर्माण करेंगे। इसी के कारण जब हम कुछ सर्वमान्य स्वीकृत भाषाओं के टेस्ट को लेकर के जब दूसरे भाषा में जाते हैं, जैसे मैं आदिवासियों के पास गई, तो वहां पर हमको इंटरप्रेटर रखना पड़ा अपने साथ में कि
इसका अर्थ जो है वह मैं उनको उनकी भाषा में नहीं समझा पा रही थी. दैट इज व्हाई आई हैव टेकन वन इंटरप्रेटर फ्रॉम द ओन बैकग्राउंड हु हेल्प्ड मी टू मेक द पार्टिसिपेंट्स कन्वीनियंट. तो उन्होंने कन्वीनियंट होकर के कार्य किया. अब बात आती है, जो हम आइटम बनाते हैं वे दो प्रकार के होते हैं, एसे टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप. जनरली जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं, जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं, तब हम निबंधात्मक प्रश्नों की बात करते हैं. जब हम क्वालिटेटिव की बात करते हैं, जिसमें हम गिवन आइटम के बारे में अपने विचार को जितना कहा होगा, 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन 200 शब्द जो भी होता होगा, उस तरीके से व्यक्त करेंगे और वैसे बताया जाए तो ये शेयर प्रोजेक्टिव वे है, जिससे कि हम अंतरतम की गहराइयों को प्राप्त कर सकते हैं. और जैसे हम टीएटी रोशॉक में ऑलमोस्ट सही इंफॉर्मेशन पाते हैं, उसी प्रकार से जो ऐसे टाइप होता है, न चाहते हुए भी डिस्गाइज करने की कोशिश करते हुए भी कि हम छिपे रह जाए, अपनी सब कुछ हिडन कर लें, हाइड कर लें. लेकिन होता क्या है कि हम अपने इसके आधार पर, अपने डिस्क्रिप्शन के आधार पर अपने थॉट्स को जो प्रस्तुत करते हैं, वह हमारी रियलिटी को बता देता है. दूसरा जो फिक्स आंसर या मल्टीपल चॉइस होते हैं, जिनको हम क्वांटिटेटिव कहते हैं, तो वही होता है कि वो यस नो भी होता है, वो 3 भी होता है, वो 5 भी होता है. 5 के ऊपर जो है डिस्क्रिमिनेटरी पावर कम होने लगता है. उसके बाद ये होता है कि हम अपने रिस्पॉन्सेज में अंतर को नहीं प्राप्त कर पाते हैं. जो पार्टिसिपेंट्स ने किया उसमें वो जो बाल बराबर अंतर जो होता है, वह जो है किसी भी पद की संरचना करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए वह ठीक नहीं होता है. तो मल्टीपल चॉइस जो होता है, मेरे विचार से, या जो टेस्टिंग में मेरे जैसे विद्यार्थी अभी भी हैं, वे 5 पॉइंट्स को अप्रिशिएट करते हैं. उसके बाद आता है 2 अल्टरनेटिव्स. जो हमारे 2 अल्टरनेटिव्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड यस और नो. लेकिन इतना हमको पता है कि हम जब किसी भी अपने विशेषता की बात करते हैं, किसी ट्रेट की बात करते हैं, किसी शीलगुण डिस्पोजिशन की बात करते हैं, तो हमारा सिक्का खड़ा रहता है, ना वो चित होता है, ना वो पट होता है. हमको अधिकतर हम एवरेज वे में करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक बार मेरे विद्यार्थी ने पूछा, मैडम इंट्रोवर्ट होना ठीक है कि एक्सट्रोवर्ट होना ठीक है? हम अधिकतम विशेषताओं के आधार पर किसी को हम आइडेंटिफाई कर देते हैं कि द पर्सन इज इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट एज वेल. बट ऐसा होता है, कोई जिंदगी भर इंट्रोवर्ट नहीं रहा, कोई जिंदगी भर एक्सट्रोवर्ट नहीं रहा, दोनों चीजों के. तो यह है कि हम जनरली जो होता है, हम एवरेज बिहेवियर पैरामीटर के एवरेज रेगुलेशन करते हैं, और तदनुरूप और तदनुसार क्या होता है कि हमारा कार्य भी होता है. तो यह है कि जनरली मैं काट नहीं रही हूं 2 अल्टरनेटिव वाला, लेकिन मैं पसंद भी नहीं करती हूं 2 अल्टरनेटिव वाला, क्योंकि इसमें आपको जो हकीकत, जो सही तरीके की एक्चुअल रिस्पॉन्सेस होती हैं, दैट कैन नॉट बी फाउंड. फिर आता है कि ट्रू फॉल्स वाला. यहाँ पर भी वही चीज है, चाहे यस नो कहिए, चाहे ट्रू फॉल्स वाला कहिए, यहाँ पर भी सेम टू सेम ये चीज आ जाती है. नाउ वी कम ऑन मैचिंग. हम कुछ मैच दे देते हैं, ए और बी, 2 समूह दे देते हैं, ए में 4 और बी में 4. ए का पहला बी के किससे मैच करता है, ए का बी, जो बी है वो किससे मैच करता है, सी किससे मैच करता है, डी किससे मैच करता है. तो इस तरीके से कभी सीधा सीधा बनता है, कभी ऐसे ऐसे बनता है, कभी ऐसे ऐसे बनता है. और ये एक प्लॉटिंग होती है, जो प्लॉटिंग हम उनके मैचिंग के आधार पर करते हैं. अब बात आती है गाइडलाइंस की, कि हम कैसे गाइडलाइन करें जिसके आधार पर हम आइटम बनावें. मैं तो बीच में एक मैंने वर्कशॉप कराई थी, मैंने टेस्ट कंस्ट्रक्शन की, तो मैंने बच्चों से टेस्ट कंस्ट्रक्ट करवा लिया, और मैंने 5 दिन की इंडिपेंडेंट की थी, और 2 दिन में मैंने उनसे एक टेस्ट बनवा लिया. तो ये है कि आप लोगों को भी, आप किस उसके हैं,
आप किन किन स्ट्रीमों के हैं हमारे आदरणीय प्रतिभागीगण, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप सब अगर एमए के लास्ट सेमेस्टर में हैं तो आप सबको टेस्ट बनाने की जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप अगर रिसर्च में आते हैं तो आपको किसी का मुंह न जोहना पड़े कि हम किसी का टेस्ट लें। आप खुद अपना टेस्ट डेवलप करिए, आपकी क्रिएटिविटी और आपके लिए ये आपकी ओरिजिनलिटी को शो करेगा। तो हम क्या गाइडलाइन लें, हम किस तरीके का अपना विचार बंध रखें, जिसके आधार पर हम क्या करते हैं कि हम अपने टेस्ट को बनाएं। सबसे बड़ी बात है साफ सुथरे शब्दों का चयन, civilized, parliamentary, and one clear answer giving, one clear meaning given, one clear meaning वाले जो वर्ड्स होते हैं आप उसको लेकर के चलते हैं तो आपका आइटम जो है वह बढ़िया बनता है। लेस यूज ऑफ नॉन फंक्शनल वर्ड्स, जो प्रकार्यात्मक कार्य हैं, जो फंक्शन की बात हम करते हैं कि किस तरीके से क्या किया, यानी वर्ब का, यानी कर्म क्रिया का प्रयोग जो है वह जैसे सब्जेक्ट प्रेडिकेट में केवल एक वर्ब होता है, हम सिखाते हैं बच्चों को इंग्लिश में, उसी तरीके से एक वर्ब रखना चाहिए और बाकी जो है या सेंटेंशियल फॉर्मेशन जो है वह फंक्शनल उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मीडियम लेवल ऑफ डिफिकल्टी एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू यू, मीडियम लेवल अगर रहेगा तो आपके जो एक अच्छे समूह है कहते हैं उनके लिए ग्राह्य होगा। हम जो भी बनाते हैं हम सामान्य पॉपुलेशन के आधार पर बनाते हैं, एक्सट्रीमिस्ट के लिए थोड़ा हमारा जो है वह कम अटेंशन होता है। और जो अप्रासंगिक शब्द हैं, जो इररिलेवेंट शब्द हैं, जिनका यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई भी महत्व नहीं है, कम शब्दों में, नपे तुले शब्दों में, एक वाक्य में कॉमा लगा लगा करके तीन स्टेटमेंट बनाने में, इन सब चीजों से बचना होगा। 3 के बजाय आप उसको एक सेंटेंस में आप 3 कॉमा लगाएं, उससे बेहतर है कि आप 4 स्टेटमेंट दे दें, दैट विल एनरिच योर टेस्ट। तो आपके लिए इस कार्य को करना पड़ेगा और ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा कि किसी जाति, धर्म, लिंग, सामाजिक आर्थिक स्तर, आयु या जो भी मैं नहीं कह पा रही हूं उसके ऊपर किसी भी प्रकार का लांछन हो। टेस्ट को बनाने के समय, टेस्ट को यूज करते समय हम ऐसे प्रश्नों को, ऐसे स्टेटमेंट को न रखें जिससे कोई वर्ग आहत हो, अन्यथा तोड़ ली गई। उसी प्रकार से सबसे पहले ये होगा कि आप अपने कार्य को नहीं कर पाएंगे। एंड नो क्लू ऑफ द आंसर, आंसर का कोई भी उसमें संकेत नहीं होना चाहिए, चाहे उसका आंसर आपका 1 वर्ड हो, चाहे 2 वर्ड हो, चाहे मैचिंग हो, चाहे जो भी आपने ऑप्शन अल्टरनेटिव्स रखे हो, लेकिन वह क्या है कि वह क्वेश्चन में आंसर नहीं छिपा रहना चाहिए। मैं ऑडिबल हूं ना? मैं ऑडिबल हूं? यस मैम। ठीक है, अगर ऐसा ना हो तो बता दीजिएगा। Yes, ma'am. ओके, आइटम एंड आंसर्स शुड बी रिलेटेड। देखिए टेस्ट बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन जब आप धीरे धीरे टेस्ट बनाएंगे तब आप टेस्ट बनाने में उतने ही स्किल्ड हो जाएंगे जितने से कि आपके गुरुजी लोग हैं। जो आपके प्रश्न में उत्तर न छिपा हो, ऐसी नादानी वाले वाक्य ना बनाएं जिसमें से आपके मिल जाए, बल्कि प्रश्न और उत्तर अलग अलग हो, लेकिन प्रश्न के उत्तर में वास्तविक उत्तर निहित हो। जब तक प्रश्न के जो आपने अल्टरनेटिव्स दे रखे हैं अगर उसमें वास्तविक उत्तर नहीं है तो ये साहब आउट ऑफ कोर्स है। जैसे कि एग्जाम में क्या करते हैं कि आरटीआई लगा देते हैं, यहाँ आरटीआई तो नहीं लगाएंगे, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वो आपका स्टेटमेंट जो है, क्वेश्चन जो भी हो, इनवैलिड हो जाएगा। अब बात आती है कि आइटम एनालिसिस की जो हम बात कर रहे हैं, पद विश्लेषण का,
ये पद विश्लेषण का उद्देश्य क्या है? Why we analyze the items? हम आइटम बना करके सीधे क्यों नहीं दे देते हैं? आइटम बनाने के पहले मैंने टेस्ट ट्रांसैक्शन की आपके यहाँ वर्कशॉप कर रखी थी ऑफलाइन, 1-2 महीना हो, शायद मार्च में की थी। तो आइटम जब हम बनाते हैं तो आइटम को बनाने के बाद पहले पायलट करते हैं, 4 लोगों को दिखाते हैं, उनका इंटररेट करते हैं, तब कहीं जाकर के ये होता है कि मार्केट में आने के पहले हम उसकी थोड़ी वैलिडिटी सेट करते हैं। रिलायबिलिटी के लिए हम स्प्लिटहाफ टेस्ट या जो 4 लोगों को हमने बताया है इंटररेटर, हम ये लगाते हैं। इससे हम आइटम्स की ऑथेंटिसिटी को प्रूव करते हैं। उसके बाद एक बड़े पैमाने पर लेकर के, एक बड़े सैंपल पर, जो मिनिमम 370 का क्राइटेरिया है, तो 370 को लेने के बाद 370 के ऊपर वह टेस्ट देने के बाद आप उसमें उनके डिस्क्रिमिनेटरी पावर के आधार पर और सिलेक्टेड वेरिएबल के आधार पर आप उसका chi स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट निकालते हैं, या नहीं और आप क्या करते हैं कि 2 एक्सट्रीम ग्रुप्स आपके पास जो हैं, सब्जेक्ट ग्रुप, प्रतिभागियों का समूह, उनके मध्य में आप क्रिटिकल रेशियो निकाल करके या टी निकाल करके, जो भी आपकी समूह शक्ति हो, उसके आधार पर जो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होते हैं आप उन आइटम्स को लेते हैं, और जो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं होते हैं आप उन आइटम्स को नहीं लेते हैं। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के बाद तब जाकर के जब आप इतने पदों का क्रमबद्ध रूप से अनुपालन करते हैं, उस अनुपालन के उपरांत आपका टेस्ट पब्लिशर को देने योग्य हो जाता है और आपके द्वारा फ्री हैंड उसको और बाकी लोगों के द्वारा फ्री हैंड उसको एडमिनिस्टर किया जा सकता है। नाउ वी कम ऑन द पर्पस ऑफ आइटम। अब आइटम एनालिसिस हम क्यों करते हैं? ताकि हम सबसे पहले आइटम्स की कठिनाई का स्तर प्राप्त कर सके। आइटम की कठिनाई का स्तर हम कैसे जानेंगे? कि जो कम एक्सेप्टेबल है, जो ज्यादा एक्सेप्टेबल है, जो वांछित प्रतिभागियों के मस्तिष्कीय क्षमता के आधार पर सूट करता है, मैच करता है या नहीं करता है, तो उस तरह के डिफिकल्टी लेवल को लेकर के चलते हैं। दूसरा, हम डिस्क्रिमिनेटरी पावर के लिए करते हैं, जो हमने आपसे बताया। तीसरी बात कि जो मल्टीपल चॉइस जो दिया जा रहा है उसकी इफेक्टिवनेस को जानने के लिए कार्य करते हैं। और जो Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो सबसे पहले ये आता है कि जो हम आइटम्स को लेते हैं, आइटम्स के लिए हमको एक चीज देखना चाहिए कि उनका जितना एक साइड विस्तार होता है उतना, मतलब आंसर की जो पॉसिबिलिटी होती है वे दोनों साइड में हो। और अगली बात होती है, इसी को हम डाइकोटमी में लाते हैं, जिसको हम द्विभाजीय आइटम्स को कहते हैं। जैसे वो जो यस नो वाला होता है, यस 1 नो 0, तो जब इसमें हम दोनों के बीच की डिफरेंसेस को, बीच के अंतर को जानने की कोशिश करते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि उत्तर 0 आता है, जो हमारे आंसर को संदिग्ध कर देता है। इसीलिए मैं ट्रू फॉल्स आइटम को मना कर रही हूँ। इसीलिए अगर 3 पॉइंट मिनिमम लिया जाए
या 5 पॉइंट्स लिया जाए सबसे आदर्श, तो सबसे ज्यादा इसमें समस्या ये जो है नहीं होती है। या अगर आप 2 पॉइंट लेते हैं तो +1 -1, +1 को आप एक्सेप्टेड कर दीजिए, -1 को आप निगेटिव में ले लीजिए, +1 को जोड़ लीजिए, तो आपके जो उत्तर आएंगे वो आपके सही उत्तर आ जाएंगे। +1 के 4 आइटम हो गए तो उत्तर आ गया आपका 4। इस तरह से हम कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि जो इररिलेवेंट आइटम्स होते हैं उनको हम किस प्रकार से कंट्रोल करें। तो इररिलेवेंट आइटम को कंट्रोल करने के लिए आपको चौगुने आइटम बनाने पड़ेंगे। अगर आपको 50 आइटम बनाना है, 50 आइटम का टेस्ट आप डेवलप करना चाहते हैं, एटलीस्ट यू प्रिपेयर 200 आइटम्स, तब कहीं जाकर के आपके हाथ में 50 आइटम आएगा जो आपके टेस्ट के लिए सॉलिड ग्राउंड प्रदान करेगा। अगली बात आती है जिसको कहते हैं प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ गसिंग और चांस, तुक्का, तीर तुक्का। तो तीर तुक्के वाला जो कार्य होता है वह नहीं होना चाहिए। वैसे तो जो ऐसे टाइप आंसर है वो सबसे बढ़िया होते हैं, क्योंकि उसमें थॉट सबसे बढ़िया नजर आ जाता है। लेकिन हम जो है थोड़ा सरलता के लिए, एनालिसिस की सरलता के लिए हम टेस्ट का करते हैं। तो जनरली हमारा जो प्रॉब्लम रिलेटेड विथ गसिंग है वो जनरली आपके यस नो में होता है, मल्टीपल के लिए ये कम होता है। तो गसिंग कंट्रोल करने के लिए एक सूत्र है S = R - W by K minus L -1 S का करेक्टेड स्कोर, उसके बाद R नंबर ऑफ करेक्टेड रिस्पॉन्स, W नंबर ऑफ रॉन्ग और इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, और L नंबर ऑफ चॉइस और अल्टरनेटिव। तो हम R - W by L - N, हम इसके सूत्र से हम गैसिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं इसके बाद अपने को टर्न कर रही हूं आइटम रिस्पांस थ्योरी के ऊपर। तो मैं स्क्रीन शेयर करने के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूं। एक मैम आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकती हैं ऑलरेडी। ऐसा है कि ओनली कैन होस्ट है, होस्ट से हटाइए तब मैं स्क्रीन शेयर करूं। हाँ तभी सेकंड डिवाइस से होगा ना। हम आइटम एनालिसिस की बात करते हैं। तो आइटम एनालिसिस जो होती है, जब हम आइटम रिस्पांस थ्योरी की बात करते हैं तो इसमें दो चीजें आती हैं, क्लासिकल टेस्ट थ्योरी और लेटेंट टेस्ट मॉडल। क्लासिकल टेस्ट थ्योरी तो अपने आप में है जिसके बारे में भी मूव होते हैं। लेटेंट टेस्ट मॉडल, उसमें दो चीजें हैं, आइटम रिस्पांस थ्योरी और रैश मॉडल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिकल टेस्ट थ्योरी की। तो क्लासिकल टेस्ट थ्योरी में CTT analyses are the easiest and most widely used form of analysis. The statistics can be computed by readily available statistical package, जो मतलब बाय हैंड पैकेजेस जो होते हैं, जिसका हम बिल्कुल हमारे जो है बिल्कुल हमारे सरलता से हमारे रीम में होते हैं, हमारे परिधि में होते हैं, हमारे क्षेत्र में होते हैं, उसके ऊपर हम बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो क्लासिकल एनालिसिस होती है ये सिंगल आइटम के बजाय क्या होता है कि होल टेस्ट के ऊपर ये लगाई जाती है। आइटम एनालिसिस जो होती है हर आइटम की तो की ही जाती है, लेकिन उसके बाद जो समूह होता है और समूह में जितने आइटम्स होते हैं उसके ऊपर इन टोटो हम CTT का इस्तेमाल करते हैं। इसमें CTT जो होता है is based on the true scores model। ये ट्रू स्कोर मॉडल होते हैं X = T + E। CTT में हम ये एज्यूम करते हैं कि एरर जो होता है, जिस तरीके से परफॉर्मेंस नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है उसी तरीके से एरर भी जो होता है वह नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, और ट्रू स्कोर कंडीशनिंग से नहीं आती है। मतलब यहाँ पर भी जजमेंटलिज्म
नहीं होती है, ये भी क्या होता है, ये नॉन जजमेंटल होता है, और इसका मीन हमेशा 0 आता है। आप एनपीसी पर चलिए तो जो बीच वाला स्थान होता है वह इसमें आपके सीटीटी में आता है। इसमें हम क्लासिकल टेस्ट थ्योरी में जो हम स्टैट्स की बात करते हैं, उसमें डिफिकल्टी लेवल स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिमिनेशन लेवल स्टैटिस्टिक्स और रिलायबिलिटी लेवल स्टैटिस्टिक्स, हम 3 तरह की स्टैट्स लगाते हैं। तो हम जब आइटम डिफिकल्टी की बात करते हैं तो हम आइटम लेवल स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं, और जब हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, हमने आपसे कहा था 2 आइटम के 2 रिस्पॉन्सेस के बीच में जो हमने सिमेंटिक डिफरेंशियल्स दिया है, उन सिमेंटिक डिफरेंशियल्स के बीच में कितना अंतर विभेदनात्मक शक्ति है, उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेटरी पावर की बात करते हैं। और हम जब टेस्ट का स्तर जानने की बात करते हैं कि टेस्ट जो है वह कितना स्तरीय है, कितना लोगों के बीच में रिगार्डेड, रेस्पेक्टेड एंड टू बी यूज्ड है, उसकी एप्लीकेबिलिटी कितनी है, यह जानने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उसका रिलायबिलिटी निकालते हैं, जिसको हम टेस्ट लेवल मॉडल कहते हैं। नाउ वी कम ऑन लेटेंट ट्रेट मॉडल। उसके बाद हम बात करते हैं लेटेंट ट्रेट मॉडल की। और जो लेटेंट ट्रेट मॉडल की बात होती है उसमें क्या है कि दे हैव बीन अराउंड सिंस द 1940s। 1940 से इसका प्रारंभ हुआ, लेकिन इनका प्रयोग 1960 के पहले से नहीं हुआ। Although theoretically possible, it is practically unfeasible to use these without specialized software. Latent test का जब तक हमारे पास अच्छा सॉफ्टवेयर, जो अब तो अवेलेबल हो गया है, तो जब तक वे हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है तब तक इसका हम कार्य नहीं करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि जिस एबिलिटी का मेजरमेंट हो रहा है, यह देखना छिपी हुई लेटेंट रेट, छिपा हुआ, ये उसका मापन कर रहा है या नहीं कर रहा है। सैंपल फ्री होकर के ये कार्य करता है और ये देखता है कि परफॉर्मेंस के थ्रू वह नॉर्मली दैट कम्स इन द प्रोसेस और नॉट। जिस चीज का हम मापन करना चाह रहे हैं, क्या वह आंसर में दिख रहा है, क्या वह आइटम्स में दिख रहा है। रिस्पॉन्स के ही थ्रू हम उस आइटम के उपादेयता को जान पाएंगे, नहीं तो हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जान सकते हैं। नाउ IRT, उसके बारे में हम ये देख रहे हैं कि हमारे क्या क्या उसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं। आइटम रिस्पांस फंक्शन, सबसे पहले ये है जो ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है, और जो एक आइटम के पीछे छुपे हुए जो लेटेंट ट्रेड्स हैं, जो छुपे हुए ट्रेड्स हैं, ये उनकी बात करता है। दूसरी बात ये करता है आइटम इंफॉर्मेशन फंक्शन, जो आइटम है वह किस प्रकार की सूचना दे रहा है और उसके मध्य में कौन सा कार्य, कौन सा प्रकार्य हो रहा है, यानी आइटम की क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता क्या है, और रिस्पोंडेंट्स के बीच में अंतर वह प्राप्त कर पा रहा है कि नहीं, क्या वह रिस्पोंडेंट्स के बीच में अंतर प्राप्त कर पा रहा है। इसलिए क्या होता है कि आइटम इंफॉर्मेशन फंक्शन की बात की जाती है। फिर बात आती है इनवेरिएंस की। इनवेरिएंस मतलब ये है पोजीशन ऑन द लेटेंट रेट कैन बी एस्टिमेटेड बाय एनी आइटम व्हिच नोज IFS एंड आइटम कैरेक्टरिस्टिक्स आर पॉपुलेशन इंडिपेंडेंट विद अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यानी हर जो छुपा हुआ ट्रेट है उसकी अपनी अवस्थिति क्या है, और हर आइटम में उसकी स्थिति क्या है, उसकी स्टैंडिंग क्या है। तो इसके बाद हम बात करते हैं आइटम रिस्पांस फंक्शन की। आइटम रिस्पांस फंक्शन characterizes the relation between latent variable and probability of endorsing an item. Latent variable मतलब क्या हुए, इंडिविजुअल डिफरेंस या कॉन्स्ट्रक्ट डिफरेंस। इंडिविजुअल व्यक्तिगत जो अंतर होता है, और जो निर्मित परक कॉन्स्ट्रक्चुअल अंतर जो होता है, उनका था एक आइटम के बीच में एक आइटम को इंडोर्स होने की संभावना, इन दोनों के मध्य में जो अंतर प्राप्त होता है वह आइटम रिस्पांस फंक्शन कहा जाता है। द IRF
आइटम रिस्पॉन्स फंक्शन जो होता है यह क्या करता है कि जो परीक्षार्थी होते हैं उनके ट्रेड लेवल की जानकारी देता है, आइटम की विशेषताओं को बताता है, आइटम के इंडोर्समेंट को बताता है, और उसके बाद ये है कि आईसीसी इससे बनती है, आइटम कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो बनती है। इसी के आधार पर हम जो ग्राफिकल फंक्शंस के आधार पर हम ये दिखाते हैं कि प्रत्येक रिस्पोंडेंट्स की एबिलिटी जो है वो आइटम इंडोर्समेंट में कैसे होती है, किस प्रकार की होती है। अब बात आती है आइटम पैरामीटर के डिस्क्रिमिनेशन की। ये क्या बताता है? ये स्टीपनेस बताता है कि सीधे कितनी ऊपर जाती है और सीधे कितनी नीचे जाती है, मतलब फ्रॉम लोअर एक्सट्रीम टू हायर एक्सट्रीम क्या बात आती है। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि एन आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडिकेट्स हाउ स्ट्रांगली रिलेटेड द आइटम टू द लेटेंट ट्रेट। छिपे हुए गुणों से वह कितना ज्यादा संबद्ध है। और फैक्टर एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो एक फैक्टर के ऊपर इसकी लोडिंग कितनी है, और जो हाईली डिस्क्रिमिनेशन जिसमें होता है, इसमें जो हाईली डिस्क्रिमिनेशन होता है वह हाईली पावरफुल आइटम होता है, और जो लो डिस्क्रिमिनेशन होता है वह लो पावरफुल आइटम होता है। अब बात जो आती है आइटम पैरामीटर बी की, जब हम बात करते हैं तो ये होता है कि आइटम लोकेशन की बात हम करते हैं। आइटम लोकेशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द लेटेंट ट्रेट नीडेड टू हैव एटलीस्ट 0.5 रिलायबिलिटी बनाने के लिए, प्राप्त करने के लिए, एटलीस्ट 0.5 रिलायबिलिटी प्राप्त करने के लिए जो हमारे लेटेंट ट्रेट्स हैं वह जो हैं कितने ज्यादा आवश्यक होते हैं। द हायर द बी पैरामीटर, बी पैरामीटर जितना ज्यादा होगा, the higher on the trait level a respondent needs to be in order to endorse the item। जितना पैरामीटर हाई होगा उतना ही उसके द्वारा आइटम का इंडोर्समेंट होगा। अब बात आती है आइटम पैरामीटर गसिंग की। अभी हम लोग गसिंग की बात कर रहे थे और फिर बात आती है आइटम पैरामीटर गसिंग की, यानी रिस्पोंडेंट इतने लो हैं उस पर्टिकुलर ट्रेट में that they do not know the correct answer। so उन्होंने केवल क्या किया है, केवल एक तुक्का लगा करके, एक गेस लगा करके आंसर दे दिया है। ऐसे में जो आइटम इंडोर्समेंट की पॉसिबिलिटी होती है वह कम हो जाती है। जनरली ये कहाँ होता है? ये मल्टीपल चॉइस में होता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। उसमें जनरली कोई क्या कहते हैं, जो ज्यादा जानकारी वाले होते हैं वे तो ठीक होते हैं, लेकिन जो ज्यादा जानकारी वाले नहीं होते वो एरो टाइप आंसर लगा देते हैं। दे जस्ट प्ले, वे केवल खेलते हैं, और उस खेल के कारण क्या होता है कि बड़ी मुश्किल हो जाती है, और वे केवल वो टोटली गस करते हैं। और गेसिंग में क्या होता है कि सही आंसर नहीं आता, जिसको सही आंसर आएगा वो गेस नहीं करेगा, और जब वो गेस नहीं करेगा सही आंसर देगा, और जब वो सही आंसर देगा तो आइटम को सही इंडोर्स करेगा। क्लियर? सब चीजें 1 2 3 इस तरीके से जब बात होती है तभी क्या होता है कि ऐसी संभावना होती है। अदरवाइज हम जब ऐसे टाइप या इस तरह की जब कोई बातें करते हैं उसमें ये चीजें नहीं आती हैं। मैं ऑडिबल हूं ना आप लोगों को? मैं ऑडिबल हूं ना? Yes, ma'am. जी, Yes, ma'am. ओके। अब बात आती है IRF, आइटम इंफॉर्मेशन फंक्शन। अब बात आती है आइटम इंफॉर्मेशन फंक्शन। आइटम रिलायबिलिटी इज रिप्लेस्ड बाय आइटम इंफॉर्मेशन फंक्शन। आइटम रिलायबिलिटी जो हम निकालते हैं टेस्ट रिटेस्ट स्प्लिट हाफ इंटररेटर चीजों से, उसमें एक आइटम इंफॉर्मेशन देने में कितना सक्षम है, वह जितना सक्षम होगा वह चाहे कितना भी समय बदले उसमें थोड़ा अंतर नहीं आएगा, वह स्टैटिक रहेगा, वह स्थिर रहेगा, रिजिड नहीं रहेगा, वह स्थिर रहेगा। तो IRT में सबसे पहले हम ये देखते हैं, और प्रत्येक आइटम की IRF निकाली जाती है। आइटम एनालिसिस जब करते हैं तो प्रत्येक आइटम की IRF निकाली जाती है। अगर 30 आइटम हैं तो 30 आइटम की अलग अलग IRF निकाली जाएगी, और इससे में जो छुपे हुए ट्रेड्स हैं, जो लेटेंट ट्रेड्स हैं, उसके बारे में जानकारी हो जाएगी। और द इंफॉर्मेशन, इससे क्या होगा कि
व्यक्तियों के बीच में एक अंतर जो है वह मिलता रहेगा, वह प्राप्त होता रहेगा। इसके बाद बात आती है कि इसमें इंफॉर्मेशन रेसिप्रोसिटी, पारस्परिकता, संबद्धता तो नहीं कहेंगे, पारस्परिकता का भी इसमें क्या होता है कि एक मान होता है। मोर इंफॉर्मेशन लेस एरर, ज्यादा सही इंफॉर्मेशन मिली, गलतियों का उसमें आना जो है वो उसकी संभावना कम हो गई। तो ये लेटेंट ट्रेट जो है वह एक ही मैट्रिक पर उसका ये मापन हो जाता है और ये इंटरवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल के थ्रू ये निकाला जाता है। अब बात आते हैं डिफिकल्टी पैरामीटर की। डिफिकल्टी पैरामीटर द लोकेशन ऑफ द हाईएस्ट इंफॉर्मेशन पॉइंट, हाईएस्ट इंफॉर्मेशन का पॉइंट जो है वह कहां तक गया। डिस्क्रिमिनेशन, हाइट ऑफ द इंफॉर्मेशन, कहां तक पहुंच करके वो नीचे पहुंचा है, कहां तक अंतर नहीं मिला, कहां से अंतर शुरू हुआ, इस बात का ज्ञान। और जितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होगा उतना ही आईएफएस जो है उसकी प्रकार्यात्मकता बढ़ेगी, जितना ही कम अंतर होगा उतना ही उसकी प्रकार्यात्मकता इसमें कम होगी। अब बात आती है टेस्ट इंफॉर्मेशन फंक्शन की, टीआईएफ। ये क्या होता है, ये आल्सो एडिटिव, इनको भी हम इसमें चर्चा करेंगे, हम इसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि टेस्ट को हम एज ए होल देखें, एज ए पार्ट देख रहे हैं तो आइटम एनालिसिस की बात आ रही है, लेकिन आइटम एनालिसिस में एक टेस्ट की बात नहीं कर सकते। हमें क्या है कि एटलीस्ट पूरे टेस्ट को ग्लोबल वे में, एक गेस्टाल्ट वे में भी देखना पड़ेगा। तो वहां पर ये देखा जा रहा है कि कौन सा पार्ट टेस्ट का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा एफिशिएंटली वर्किंग कर रहा है, टेस्ट का कौन सा पार्ट सबसे अधिक वर्किंग कर रहा है। इस कंटेक्स्ट में हम जो है वो हम इसको जानते हैं। अब इसके बाद बात आती है इन वेरिएंस की। तो IRT मॉडल पैरामीटर्स हैव एन इनवेरिएंस प्रॉपर्टी। वेरिएंस से तो काम नहीं चलेगा, अगर वेरिएंस हुआ, हर जगह विचलनशीलता हुई, तो टेस्ट की जो ऑथेंसिटी है वो तो बची ही नहीं। आप जब टेस्ट बनाएंगे बड़े होकर के तो आपको पता चलेगा कि इनवेरिएंस जो है उसका क्या महत्व है और वेरिएंस होने से क्या होता है। Examinees trait level estimate do not depend on which items are administered, and in turn item parameters do not depend on a particular sample. एक सैंपल पर देखने के बाद उसकी उपादेयता उसी सैंपल के लिए, उसकी संबद्धता उसी सैंपल के लिए न हो, बल्कि उसके लिए वह उससे संबंधित जितने ग्रुपों के लिए, जितने समूहों के लिए यह टेस्ट बनाया गया है, यह सबके लिए स्थिर रहे और सब जगह पर इसका मापन कर सके। इनवेरिएंस रिसर्चर को क्या क्या चीजें बताता है, ये बताता है इफिशिएंटली लिंक बिटवीन डिफरेंट स्केल्स, अन्य मापनियों के साथ, अन्य स्केल्स के साथ इसका कनेक्शन क्या है। रिस्पोंडेंट्स की तुलना, हम जब सीआर निकालते हैं तो रिस्पोंडेंट्स की तुलना करते हैं और इसको कंप्यूटराइज्ड एडाप्टिव सेटिंग के माध्यम से क्या करते हैं, हम इसका प्रयोग करते हैं। अब बात आती है आईआरटी की अभिकल्पना, एजम्पशंस, परिकल्पनाएं, अभिकल्पनाएं, या हम कहेंगे मान्यताएं। इसकी मान्यता क्या है, किसके आधार पर हमने ये कार्य किया। मोनोटोनिसिटी, मोनोटोनस, जब एक ही कार्य को करते रहे, एक ही कार्य को करते रहे, कोई परिवर्तन ना हो, कुछ भी ना हो, तो एक जिसको ऊब कहते हैं, ऊब, खींच, बोरियत, और उसके कारण बिना किसी बात का बस्ट आउट। मोनोटोनी जो है, हम थोड़ा अगर आइटम रिस्पॉन्स से थोड़ा सा अगर हम मिले हुए जरा सा स्लाइटली अलग जाते हैं, तो जिसको हम बर्नआउट कहते हैं और बर्स्ट आउट कहते हैं। तो लगातार की जो मोनोटोनी होती है वह क्या करती है कि वह हमें अंदर बर्नआउट को जन्म देती है, और वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में होती है। और जब बर्नआउट का लेवल बिल्कुल बर्दाश्त के नाकाबिले बर्दाश्त, जब बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, तब क्या होता है, वो फिर बस्ट आउट हो जाता है। तो यह है कि इसमें मोनोटनी वाली बात इसमें जो है वह नहीं होनी चाहिए।
तो जब मोनोटोनस फंक्शन बढ़ते हैं तो वे आइटम अपना ग्रेस, अपनी गरिमा जो है वह खो बैठते। एज ट्रेट लेवल इंक्रीजेस, जैसे जैसे ट्रेट का स्तर बढ़ता है, वाइडली बढ़ता है, आगे बढ़ता है, वैसे वैसे क्या होता है कि इंडोर्सिंग जो है वह भी होती जाती है। और अगर इसी का वायोलेशन हो गया, अगर इसी को नहीं माना गया, इसी की अवज्ञा हो गई, तो हमारे डेटा में क्या होगा कि अंतर आ जाए। इसके बाद बात आती है यूनिडायमेंशनलिटी। इसके बाद बात आती है यूनिडायमेंशनलिटी की। इन द IRT मॉडल described above, individual differences are characterized by single parameter. हम एक ही पैरामीटर पर लोगों को क्या करेंगे, हम लोगों को एक ही पैरामीटर पर जज करते हैं। वैसे तो इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करते हैं, लेकिन हम जब टेस्ट की बात करते हैं तो हमको हर व्यक्ति जो है वह मोरलेस एक ही दरवाजे पर, एक ही तराजू पर खड़ा होना होता है। तो मल्टी डायमेंशनल IRT मॉडल एग्जिस्ट बट दे आर नॉट कॉमनली अप्लाई। मल्टी डायमेंशनल है, लेकिन हम बात करते हैं यूनिडायमेंशनलिटी की, और हम एक आयाम पर, एक सिंगल आयाम के ऊपर हम काम करते हैं। कहा जाता है कि जो छिपा हुआ लेटेंट, फिर बात आती है लेटेंट फैक्टर की, कि तो जो लेटेंट फैक्टर होते हैं, जो लेटेंट ट्रेड्स होते हैं, वे आइटम के कोवेरिएंस के लिए जिम्मेदार होते हैं, और एक जो सिंगल आइटम फैक्टर है वह उसकी इसमें अकाउंटेबिलिटी बनती है। IRT मॉडल ऑफन असेस्ड यूजिंग स्पेशलाइज्ड फैक्टर एनालिटिक मॉडल। अब यहाँ पर जो द्विभाजीय हुए, डाइकोटोमस जो द्विभाजीय हुए, वहां पर भी जो हम लगाते हैं उसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बात आती है लोकल इंडिपेंडेंस की। जो स्थानीय आइटम के मध्य का जो स्थान हुआ, आइटम के बीच की जो इंडिपेंडेंस हुई, LI, इसमें क्या होता है, आइटम रिस्पॉन्सेज आर अनकॉरलेटेड आफ्टर कंट्रोलिंग फॉर द लेटेंट। जब तक वो कंट्रोल में नहीं था तब तक तो कॉरलेशन आ रहा था, और जब उसको कंट्रोल कर लिया गया, लेटेंट रेट को जब कंट्रोल कर लिया गया, तो टेस्ट की वैधता, विश्वसनीयता खतरे में पड़ गई, और उसके बाद जो है वह आइटम रिस्पॉन्सेस के बीच में कोरिलेशन जो है वह नहीं मिला। अब ये कब होता है, व्हेन LI इज वायोलेटेड, जब लोकल इंडिपेंडेंस की अवज्ञा की जाती है। हर आइटम के अपने पहलू, हर आइटम का अपना एग्जिस्टेंस, हर आइटम के अपने मूल्य, जब उनकी अवज्ञा की जाती है, उस समय जो है यह लोकल डिपेंडेंस की बात आती है, उसी को लोकल डिपेंडेंस कहते हैं। यूनिडायमेंशनलिटी और LI आपस में संबद्ध हैं, और यूनिवोकल स्केल्स जो हैं, अधिकतर जो यूनिवोकल जो बिल्कुल एक वाचीय जो स्केल्स हैं, वे लोकल, जैसे आइटम एनालिसिस, जैसे आइटम से रिलेटेड जो हैं उसके आधार पर इसमें अंतर आ जाता है। अब लोकल डिपेंडेंस क्या करता है, डिस्टार्ट आइटम पैरामीटर एस्टिमेट्स। अब इसमें क्या करता है कि वह आइटम पैरामीटर जो का अनुमान जो होता है उसका समाप्ति होने लगती है। कॉज स्केल्स टू लुक मोर प्रिसाइज देन दे रियली आर। और जितने प्रिसीजन में हैं, जितने संक्षेप में हैं, ये उससे भी ज्यादा उसको उसके ऊपर प्रभाव डालता है। और व्हेन LD लोकल डिपेंडेंस जब एग्जिस्ट करता है, तो हमको बहुत अच्छी मात्रा में सहसंबंध प्राप्त होता है, एंड a large correlation between two or more items can essentially define, उनकी हम व्याख्या कर सकते हैं, उनको हम परिभाषित कर सकते हैं, और डोमिनेट द लेटेंट ट्रेड, और फिर जो छिपे हुए ट्रेड्स हैं उन पर क्या करते हैं कि हम उसको व्याख्या उसकी कर लेते हैं, व्याख्या नहीं, हम उसको डोमिनेट कर लेते हैं, हम उसको ओवररूल कर लेते हैं, और इस तरीके से क्या होता है, हमारे कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी का, टेस्ट के कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी का निर्माण होता है।
अब बात आता है वंस एलडी इज आइडेंटिफाइड, जब एलडी पता चल गया, एलडी लोकल डिपेंडेंस जब पता चल गया, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम उसको किस तरीके बनाने के उसके द्वारा होती हैं। डिलीट वन और मोर ऑफ द एलडी आइटम्स, एक दो जैसे कहते हैं कि किसी भी समूह को हेटेरोजेनियस बनाने के लिए केवल एक व्यक्ति ही जो होता है वह कभी केवल एक इवेंट, व्यक्ति भी हम नहीं कहेंगे, केवल एक इवेंट जो होता है वह रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर हम उसको हटा देते हैं तो समूह में क्या होता है कि सामान्यता आ जाती है और लोकल इंडिपेंडेंस पता चल जाता है। आपको मैं एक एग्जांपल बताऊं, बस जब मैंने कुमाऊं यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया तो हमारे पास हमें पार्ट 1 के विद्यार्थी थे, तो वही 18-19 साल की को जो 55-56 साल के उस समय रहे होंगे, जब मैं ही अंडर 30 थी। तो मैंने सोचा ये किसी स्टूडेंट के फादर होंगे और मैंने क्लास से भगा दिया। फिर मुझे पता चला कि वो रिटायर्ड सीएमओ थे और वो क्लास में वो बहुत स्टूडियस अभी भी हैं, वो कितने विषय में एमए कर चुके हैं, वो साइकोलॉजी एमए करने के लिए आए थे। अब आप ये सोचिए कि ऐसा वेरिएबल अगर एक बीच में रहता है तो बच्चों के एज का मीन क्या निकलेगा। जो 19 साल की 18-19-20 साल के बच्चे हैं उसके बीच में अगर हम 55 साल के बच्चे को 55 साल के विद्यार्थी की एज को जोड़ देंगे तो 55 साल वाला तो यंग हो जाएगा, लेकिन जो यंग है वो ओल्ड हो जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति जो ऐसे जो घटनाएं होती हैं वे समूह को हेटेरोजेनियस बनाती हैं, असामान्य समूह का निर्माण करती हैं। तो इस कंडीशन में हमें क्या चाहिए, हमें उस लेटेंट ट्रेट का, डॉक्टर पांडे लेटेंट ट्रेट, ऐसे लोगों का पता लगाना चाहिए जिसके कारण हमारी डिपेंडेंस जो है वह बनी रहे। अब बात आती है क्वालिटेटिवली होमोजेनियस पॉपुलेशन। IRT मॉडल assumes that the same IRF applies to all members of the population, जितने सदस्य हैं सबके ऊपर ये चीज जो है वो लग जाएगी। और DIF डिफरेंशियल आइटम फंक्शन, ये ऑकर होता है, ये उपस्थित होता है, ये कब, व्हेन एन आइटम हैज ए डिफरेंट IRF, जब 2 या 3 समूहों में एक ही आइटम के 2-3 IRF मिलते हैं, उस समय ये जो है आपका डिफरेंशियल आइटम फंक्शनिंग का जो है उसकी उपस्थिति होती है। इसलिए जो होता है क्या होता है, examinees that are equal on the latent traits have different possibilities of endorsing the item। तो इस तरीके के लोग जो होते हैं वे क्या करते हैं कि डिफरेंट उनकी जो पॉसिबिलिटीज होती है और वे टेस्ट के स्ट्रक्चर को प्रभावित करते हैं। लेकिन एक चीज और है, एक सिंगल IRF को हम सारे पॉपुलेशन के ऊपर, एक सिंगल IRF को हम सारे पॉपुलेशन के ऊपर एडमिनिस्टर नहीं मान नहीं सकते, कि वह अप्लाई नहीं कर सकते कि वह सबके ऊपर एक ही जाएगा। अब बात आती है इसके एप्लीकेशंस की, जो आप हमारी आइटम रिस्पांस थ्योरी है उसके ऑर्डर्ड पॉलीटोमस आइटम्स। IRT मॉडल एग्जिस्ट फॉर डेटा दैट आर नॉट डाइकोटोमसली स्कोर्ड। अभी मैं डाइकोटोमी की बात कर रही थी आपसे कि डाइकोटोमस क्वेश्चन स्टेटमेंट्स को नहीं लेना है। तो अगर आपके क्वेश्चंस डाइकोटोमस होंगे तो आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपकी जो IRT है वह कहीं पर भी उपादेय नहीं होगी। With dichotomous item there is a single difficulty that indicates the threshold at which the probability switch from favoring one choice to the other। इसमें सबसे बड़ी बात है हमको थ्रेशोल्ड नजर नहीं आता, इसमें हमें सीमांत नजर नहीं आता कि इधर क्या है उधर क्या है और बीच में क्या है। तो ऐसी जगहों पर हमारी जो IRT है वह कार्य नहीं करती है। अब आता है डिफरेंशियल आइटम फंक्शनिंग। हाउ कैन एज ग्रुप्स जेंडर्स डिफरेंशियल, अभी मैं आपको डिफरेंट
इस डेटा की बात आपसे मैं कर रही थी कि डिफरेंट समूह जो होते हैं वह किस किस तरीके से बनते हैं, और वो जो प्रत्येक समूह है उनका अलग अलग रोल क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, भूमिका क्या होती है। इसका मतलब हाउ डिफरेंट एज ग्रुप्स, जेंडर, कल्चर, ethnic group and socioeconomic backgrounds be meaningfully compared। क्या ये जो सारी चीजें हैं उनको हमने सार्थक रूप से कंपेयर किया है। आइटम की फंक्शनिंग तो हमें तभी सही तरीके से पता चलेगी जब हमको यह समझ में आएगा कि हर आइटम को ब्रॉड तरीके से अंडरस्टैंड किया गया है और हर आइटम को ब्रॉड तरीके से इंटरप्रेट किया गया है। और ब्रॉड तरीके से तभी होगा जब हम एक एक रिस्पोंडेंट के हर पर्टिकुलर्स को एज, जेंडर, कल्चर, एथनिक ग्रुप और उसकी जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है सबके आधार पर उसको मेजर करेंगे। आज जिस तरीके से मशरूम के तरीके से टेस्ट बन रहे हैं इस तरीके से टेस्ट नहीं बनते। टेस्ट बनने में बड़ा समय लगता है, आदमी 2 टेस्ट बना दे यही बहुत बड़ी बात है जीवन में। Can be a research goal as opposed to just a test on of an assumption। क्या जो हमारा assumption होता है can be a research goal as opposed to just a test of an test assumption। मतलब जो हमारा रिसर्च गोल है वह क्या रिसर्च assumption के विपरीत भी जाकर के व्याख्या कर सकता है। एक प्रश्न है, एक विचारणीय प्रश्न है। इस प्रश्न को ध्यान में रखा जाए और इसके लिए तैयार भी रहे कि अगर ऐसा कभी अवसर आएगा तो यह भी करना पड़ेगा। टेस्ट इक्विवेलेंसी ऑफ टेस्ट आइटम ट्रांसलेटेड इनटू मल्टीपल लैंग्वेज। अगर टेस्ट के हर आइटम को डिफरेंट भाषा में उसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में उसको अगर हम ट्रांसलेट करते हैं, वेरी टाइम्स ऐसा होता है कि हमको एक टेस्ट को अनेक भाषाओं में उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो ऐसे समय में ऐसा तो नहीं है कि हम अगर उसको दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आइटम के अर्थ का अनर्थ हो जाए, यानी आइटम की जो सिमिलैरिटी है वह बनी है। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम उसको मल्टीपल लैंग्वेज के लिए भी तैयार रखें कि हम किसी भाषा में करें उसका अर्थ जो है वो स्टैटिक रहे, अर्थ में अंतर न आए। टेस्ट आइटम्स इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चरल डिफरेंसेस। जिस तरह से कल्चर्स में अंतर होता है, हर कल्चर की अपनी रियलिटी अलग अलग, हर कल्चर की अपनी रियलिटी अलग अलग है, हर कल्चर के अपने विचार अलग हैं। और सब कल्चर में एक ही चीज, सब कल्चर माने हर कल्चर में प्रत्येक कल्चर में एक चीज सही नहीं मानी जाती है, सबके यथार्थ अलग अलग हैं। इसलिए टेस्ट आइटम जो हैं इससे भी प्रभावित होते हैं। टेस्ट फॉर इंटेलिजेंस आइटम्स दैट जेंडर बाइस्ड। जेंडर बाइस्ड टेस्ट आइटम, लड़कों का ऐसा लड़कियों का ऐसा, इस चीज को भी ध्यान में रखना पड़ता है। और एज डिफरेंस के हिसाब से पर्सनालिटी की हम बात करते हैं, मतलब पर्सनालिटी के डिफरेंस से और एज के डिफरेंस से हमें क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अब बात आती है स्केलिंग इंडिविजुअल्स फॉर फर्दर एनालिसिस। आगे के एनालिसिस में हम व्यक्ति का स्केलिंग, उसकी पैरामीटरिंग जो है वह हम किस प्रकार से करें। स्केलिंग इंडिविजुअल्स, वी ऑफन कलेक्ट डेटा इन मल्टीफेसेटेड फॉर्म्स। मल्टी आइटम सर्वे, बहुत तरह के आइटम बनाते हैं और हम उसमें अलग अलग तरीके से डेटा का कलेक्शन करते हैं एंड देन कोलैप्स देम। फिर उसको हम क्या करते हैं, उसको जो हम इकट्ठा करते हैं सबसे पहले वह हमारा कच्चा प्राप्तांक हुआ, कच्चा प्राप्तांक रॉ स्कोर। सबसे पहले क्या हुआ, वह हमें जो पहली गेनिंग होती है वह हमारा रॉ हुआ। और इसी स्कोर के आधार पर, इसी स्कोर को फॉलो करते हुए IRT बेस्ड स्कोर रिप्रेजेंट ऑप्टिमल स्केलिंग ऑफ इंडिविजुअल। इसके भी ऊपर एक अनुमानित सबसे पहला जो होता है, हम पायलट को भी डिनाई नहीं कर सकते, हम स्टैंडर्डाइजेशन सैंपल को भी डिनाई नहीं कर सकते, हम रिसर्च वाले को भी डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि सब जो है वह अलग अलग तरीके से अपने विशेषताओं को देती है।
Most sophisticated analysis require at least interval level measurement, and IRT scores are closer to interval levels than raw scores. Most sophisticated analysis, जो हम बिल्कुल एक बड़े सुशिष्ट कुछ अच्छी जो गहरी हम एनालिसिस करते हैं, वे कहते हैं कि IRT के जो स्कोर्स हैं वे रॉ स्कोर के बजाय इंटरवल स्कोर्स के, जब हम उसको इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्लास इंटरवल में, ये उसके लिए ज्यादा उपादेय हैं, ये वहीं पर कार्य करते हैं, ये रॉ स्कोर की बात नहीं करते हैं। अब बात आती है कि using scaled score as opposed by raw scores has been shown to reduce spurious result. जो हमारे स्प्यूरियस रिजल्ट्स आते थे वो कच्चे से नहीं आएंगे, बल्कि जो स्केल्ड स्कोर होंगे उसके कारण। स्केल कंस्ट्रक्शन एंड मॉडिफिकेशन, अब बात आती है एप्लीकेशन में अगला। द फोकस इज चेंजिंग फ्रॉम क्रिएटिंग फिक्स्ड लेंथ पेपर पेंसिल टेस्ट टू क्रिएटिंग अ यूनिवर्स ऑफ आइटम्स नोन एज IRFs that can be used interchangeably. यानी हम इसमें पेपर पेंसिल टेस्ट जो हमको मिलता है, हम उसकी प्रयोग ना करें, हम उसका प्रयोग ना करके हम क्या करते हैं कि सिचुएशनल यूनिवर्सल आइटम बनाते हैं। हम ऐसे, देखिए कितनी अच्छी बात है, यूनिवर्सल आइटम बनाइए जिसको हम विश्व के किसी भी कोने में अगर करेंगे तो हमें ये नहीं लगेगा कि इंडिया में तो ऐसा है, अमेरिका में ऐसा है, बाकी जगह कैसा, किसी जगह कैसा, तो इसकी जगह पर हमें क्या करना पड़ेगा कि एक जगह पर अगर हम एक बनाएंगे तो वह हमारे लिए ऑल वर्ल्ड में, यूनिवर्स में वह जो होगा वह एप्लीकेबल होगा, उसको हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। स्केल्स जो डिजाइन हो रहे हैं, जो हमारे अधिकतर स्केल डिजाइन हो रहे हैं, वह IRT पॉपुलेशन, जब IRT पढ़ लेंगे, जिसको वैसे IRT दो तरीके से कार्य करता है। एक तो हम जब टेस्ट कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम IRT पढ़ें या ना पढ़ें, ये होता है कि हम उसका गोपनीय तरीके से, लेटेंट नहीं, गोपनीय तरीके से, जाने अनजाने हम उसका प्रयोग करते ही रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि तब हम थ्योरीज को लेकर के हम उसकी प्रॉपर्टीज को यूज तो करते हैं, लेकिन हम प्रॉपर्टीज को जान करके नहीं यूज करते, एज दे आर इसेंशियल टू कम ओवर वन स्टेप एंड गो टू द अनदर, इसलिए हम उसका प्रयोग करते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जाने अनजाने पहले और जान करके बाद में हम उसका प्रयोग करते ही रहते हैं। प्री एग्जिस्टिंग स्केल्स दैट वर डेवलप्ड यूजिंग CTT आर बीइंग रिवैम्पर्ड यूजिंग RIT। अब IRT, अब वो IRT के जो पहले CTT वाले थे, अब वो IRT के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं उसके पैरामीटर पर। कंप्यूटर एडेप्टिव टेस्टिंग, CAT, computer adaptive testing, CAT, as an extension of the once a universe of an item with known IRF is created, they can be used to measure tracing. एक बार अगर पता चल जाता है तब क्या होता है कि हम उसको बाहर दोबारा उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार की अगर इस्तेमाल हमारा हो जाता है तो हम उसको कंप्यूटर फॉर्म में, जैसे वास्तव गूगल बनाया जा रहा है, उसमें हो जाएगा। An item is given to a participant, usually easy to moderate difficulty, and their answer allows their trait score to be estimated. उसके जो आंसर होते हैं, जो हम देते हैं क्वेश्चन, उसके जो आंसर होते हैं वे जो हैं वे क्या होते हैं, वे उसके ट्रेट स्कोर का निर्माण करते हैं, उसके ट्रेट का इससे अनुमान होता है, और इससे क्या होता है कि टारगेट ट्रेट लेवल तक पहुंचने के लिए अगले आइटम का चयन होता है, और सेकंड आइटम के बाद ही क्या होता है कि उसका रीएस्टिमेशन होता है। अब बात आता है टेस्ट इक्विटी। Participants that have taken different tests measuring the same construct but both have items with known as participants that have taken different tests measuring the same construct, ऐसे पार्टिसिपेंट जिनको लिए गए हैं जो एक ही कंस्ट्रक्ट पर डिफरेंट टेस्ट लिए दे रहे हैं, वे
IRFS की बात, IRFS के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, उनको एक ही स्केल में रखा जा सकता है और उनके स्कोर्स को इक्विवेलेंटली यूज किया जा सकता है. इक्वेटिंग across grade on math ability. Equating score yes for placement or admission test. तो इस तरीके से हम जो कार्य करते हैं, हम आपके टेस्ट के बारे में टेस्ट कंस्ट्रक्शन के बारे में हमने आपको बता दिया और आपको हमने आइटम रिस्पांस थ्योरी के विषय में जितनी जानकारी दी, इससे यह सिद्ध होता है कि जब आप आइटम के कैरेक्टरिस्टिक्स को, आइटम के रिस्पॉन्सेस को यदि आप सही तरीके से जान लेंगे और तदनुसार आप टेस्टिंग के नियमों का, टेस्टिंग के शर्तों का पालन करते हुए यदि आप टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो आपके टेस्ट के कंस्ट्रक्शन की प्रोसेस में, साइंटिफिक प्रोसेस में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी और आपके टेस्ट में ग्रेस भी आएगा, क्योंकि आपको उस टेस्ट के निर्माण में ट्रायल एंड एरर का कार्य नहीं करना होगा. दैट इज ऑल अबाउट टेस्ट कंस्ट्रक्शन एंड आइटम रिस्पांस थ्योरी. थैंक यू वेरी मच. हेलो, मेरे ख्याल से हम लोगों के वैसे तो MA 4th सेमेस्टर में और कहीं ना कहीं मैम और रिसर्च के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो उनको टेस्ट डेवलपमेंट पढ़ना ही होता है. कई बार ये ग्रेजुएशन में ये छोटा सा है, लेकिन बच्चे कभी इसकी गंभीरता को समझ नहीं पाते. और मैं समझता हूँ कि पहली बार हमारे बच्चों ने, और सॉरी मैं बच्चों का रहा हूँ, मतलब पार्टिसिपेंट्स में हमारे स्टूडेंट्स भी हैं और हमारे ऐसे भी पार्टिसिपेंट्स जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन से और जो है हमारे सीनियर. तो आपको जो ऐसे हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने पहली बार मेरे ख्याल से इतना डेप्थ में आइटम रिस्पांस थियरी के बारे में सुना, और पर्टिकुलरली ये पूरा जो था ये आइटम एनालिसिस से संबंधित एरिया है. हम जब क्लासिकल टेस्ट थियरी को यूज करते हैं और आइटम एनालिसिस करते हैं, जो एक्टिविटीज करनी होती हैं, आप अगर टेक्स्ट बुक्स पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल हम वैलिडिटी और रिलायबिलिटी की बात करते हैं, तो वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी इज डिपेंडेंट अपॉन एक्सटेंसिव आइटम एनालिसिस. और जब हम आइटम एनालिसिस जब बहुत अच्छे से करते हैं तो हमारे आगे टेस्ट की प्रॉब्लम नहीं होती, वो रिलायबल भी होता है और वैलिड भी होता है. कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आइटम टेस्ट साइज और नंबर ऑफ आइटम से रिलेटेड होती है, वो हम बढ़ा घटा सकते हैं. तो क्लासिक टेस्ट थियरी जब डेवलप हुई, उसके बाद जब टेस्ट डेवलप होने शुरू हुए, और उसके बाद जैसा मैडम ने बताया कि 1940 में ये सारे टेक्निक्स आ चुके थे, लेकिन जब कंप्यूटर्स का एप्लीकेशन ज़्यादा बढ़ा और 60s में जब कंप्यूटर्स अवेलेबल हुए यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज में, तो आइटम रिस्पांस थियरी का भी चलन बढ़ा, क्योंकि ये थोड़े अपने नेचर में मल्टीवेरिएट टाइप के एनालिसिस हैं. और मैं बस छोटा सा एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि अगर किसी ने क्रॉनबेक अल्फा का सूत्र देखा होगा, तो जब हम आइटम एनालिसिस करते हैं और हर इंडिपेंडेंट आइटम जब करते हैं तो क्रॉनबेक अल्फा से कुछ लेना देना उसका भी है, आप आगे पढ़ेंगे. और मैं अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि हमारी लाइब्रेरी में आइटम रिस्पांस थियरी पे आज से करीब 15 साल पहले मैंने एक किताब मंगवाई थी जो काफ़ी यूजफुल है. मैं उसको रिकमेंड करूँगा, आप उसको देखिएगा. और इन शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अपने रिसोर्स पर्सन प्रोफेसर आराधना शुक्ला मैम का, जितने डिटेल में उन्होंने IIRT के बारे में बताने का प्रयत्न किया है. और मैं सुन रहा था, लगभग पूरा लेक्चर मैंने बैठ के सुना है यहाँ पे. ये बहुत कम रिसोर्स पर्सन हमारे इतना गहन जानकारी रखते हैं और मतलब उसको शेयर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये अभी भी लोग हिचकते हैं आइटम रिस्पांस थियरी को यूज करने में. आइटम एनालिसिस में अभी भी कई लोग क्लासिकल टेस्ट थियरी को यूज करते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने विभाग की ओर से और अपनी ओर से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने इतने विस्तृत तरीके से मैडम आपने हमारे पार्टिसिपेंट्स को पर्टिकुलरली आइटम रिस्पांस थियरी, लेकिन ओवरऑल जो आइटम डिफिकल्टी लेवल और आइटम एनालिसिस और आइटम के बारे में जो जानकारी दी है क्लास, इसके साथ साथ एक्चुअली हम लोग क्लासिक टेस्ट थियरी भी पढ़ते जा रहे थे. तो एक तरह से हम लोगों ने केवल IIRT नहीं बल्कि क्लासिक टेस्ट थियरी और IIRT दोनों थियरीज पढ़ी. तो
एक बार फिर मैं आपका, मेरी ओर से, हमारे विभागाध्यक्ष की ओर से, मेरे विभाग की ओर से और सभी ऑर्गेनाइजिंग टीम की ओर से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कल के लिए एक अनाउंसमेंट है। हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को हम लोगों ने एक मैसेज किया है और मेल भी जो ये है उसमें आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा कि कल जो ट्रेनिंग होने वाली है वो एक्चुअली एक क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी पे जो एनवीवो और जीपी करके हम लोगों ने भेजा है। आप उस इन दोनों सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेंगे और अपने सिस्टम में अगर आप रखेंगे तो जो हमारे एक्सपर्ट हैं, रिसोर्स पर्सन है, वो उसकी प्रैक्टिकल एक ट्रेनिंग देने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ कि यह एक बड़ी ही जबरदस्त अनुपम उपलब्धि होगी हम लोगों की अगर हम लोग उसको सीखें, क्योंकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो हम पैकेज पे जैसे SPSS वगैरह पैकेज पे करते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव एनालिसिस हम इस तरह के पैकेजेस पे करना अभी भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो हमारे एक एक्सपर्ट ने मुझे यह सम्मति दी कि वो ऐसा करेंगे। मैं समझता हूँ कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं MA और रिसर्च के, वो इसका भरपूर लाभ उठाएंगे। तो कल आप जब लॉग इन करें 11:30 बजे, थोड़ा पहले ही लॉग इन कर लें, अपना सिस्टम ऑन कर लें और आज जरूर उसको डाउनलोड करके और इंस्टॉल कर लेंगे तो आसानी होगी। तो इस नोट के साथ मैं फिर अपने वर्तमान रिसोर्स पर्सन का एक बार आभार करते हुए और धन्यवाद देते हुए और आज हम लोग अब लीव करेंगे। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मैम। और सो नाउ वी आर लिविंग आउट with this note. Thank you very much. Thank you for all.